Okay, welcome to all. A very warm good afternoon to everyone. As we all know, we are here to discuss about a next topic, that is mental health and viral hepatitis. So everyone knows what is viral hepatitis, because already discussed in previous classes that viral hepatitis is inflammation due to viral infection, that it may cause acute form or as a recent infection with relatively rapid onset, or in a chronic form it may lead to the like in a acute onset, or it may in a form of chronic, that may damage the mental health of the patient or disrupt the mental health of the patient or the person who is suffering from any kind of viral hepatitis. So viral hepatitis, as we all know, it is caused by inflammation of the liver, that is any type, like type A, B, C, D. So A and E are mainly caused by ingestion of contaminated food or water. That is already discussed. I think it is discussed in previous slides or previous sessions. So I'm not going with A and E and not B, C, D. I am only focusing on what is mental health and what is associated with mental health as well as viral hepatitis. So A&E is ingestion caused by ingestion of contaminated food or water, whereas B, C, D are caused by contact with contaminated blood or body fluids. Means the person who is suffering from any kind of hepatitis, especially B, C, D, if the other person is in contact with other body part or the fluids, may also have a more chance of having a hepatitis. Whereas B and C can lead to chronic diseases, means because these are the infection which are more chronic and they cause more damage to the liver, as well as disrupt the patient's mental health and their burden over the mental health, because the issues are having, the person is not having that type of capability to understand what to do and thinking about the more about the future burdens. So that may leads to the mental stress over the person from a disease. So viral hepatitis and mental health is a common strong reaction. If we are saying, if anyone or any person, कोई भी ऐसा person है जिसको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जो है डायग्नोस होता है, तो ऑलरेडी वो एक ऐसा शॉर्ट टर्म कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म बीमारी जिसमें इंसान को बहुत सारे मतलब इमोशंस के साथ उसको गुजरना पड़ता है, जिसमें से मेनली फियर है या फिर एंगर है, ठीक है, वो ज्यादा मतलब रिएक्शंस बाहर निकल करके आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया. सो हाउ कैन मैनेज, द मेन थिंग इज हाउ कैन मैनेज, एंड द मेन स्ट्रेस इम्पैक्ट इज ऑन मेंटल हेल्थ. So mental health, everyone knows ki what is mental health. Mental health is any person or any state of well-being of the person is his or her realizes own potential, where the person is realizes their own potential and tries to cope up with normal stress of life. But the normal stress of life is fruitful, productive, then the person is capable to maintain their daily life good, their daily activities good. But and at the if the person is not mentally stable, mentally free from diseases, uh, so at that time the person is dealing with how to cope up with daily stress and activities. But if the person is suffering from any kind of hepatitis or viral hepatitis, is having stress, is having more stress, it is difficult to cope up with the stressful situations. So mental illness as well as hepatitis both are occurring with having comorbidity. Matlab, the person who is suffering from mental illness, if the person is having hepatitis, are more prone chances to develop infection like viral hepatitis. So if we are saying कि mental illness के साथ साथ जनरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो हेपेटाइटिस जिनको हो रखा है उनको अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर मेंटल इलनेसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन जिनमें वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस नहीं है. तो अगर हम वायरसेस की बात करेंगे तो साइकेट्रिक कंडीशंस में अडल्ट और चाइल्ड दोनों में होने के चांसेस ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड में हो सकता है या फिर अडल्ट में हो सकता है. तो देयर इज अ रिपोर्ट ऑन अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट भी दी हुई है. उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन देम, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो एंजाइटी इश्यूज,
डिप्रेसिव इश्यूज या फिर इंसोमिया, ठीक है, ये सारे एसोसिएटेड ज्यादा हो रहे हैं जो कि हेपेटाइटिस में, जिसमें से डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन, ज्यादातर लोगों में, कॉमन लोगों में हमें देखने को मिली है. एंड हाउ कैन वी ट्रीट विद इट? वी ट्रीट इट विद बाय गिविंग अ special support system. If we are providing support system, yes, seeking support, social support by treating with this virus may improve by giving medications या therapies, या हम उस quality of life को कैसे improve कर सकते हैं. So HCV, सबको पता है, HCV is also very chronic and very destructive. So more chances to develop, the person who is suffering from hepatitis, more chances to develop anxiety issues, depression and insomnia issues. काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग इज अ टॉक थेरेपी. वी आर टॉकिंग जस्ट विद अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ, कि हमें बात करनी चाहिए किसी से, या फिर बात करके हम कैसे जो प्रॉब्लम्स हो रखी हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. सो इट अलाउज पीपल टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, जो कि इंसान ऑलरेडी कोई चीज में ट्रेंड हो रखा है, ठीक है, in a very peaceful and very safe ambience, where the counselor is just discussing about what is hepatitis and how you can take hepatitis in a healthy way. मतलब ऑलरेडी डिजीज तो हो ही रखी है, पर्सन सफर कर रहा है, कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहा है, बट वो कैसे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप उससे बना के और कैसे जो उसका बर्डन है उसको इम्प्रूव कर सकता है. तो कुछ पॉइंट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलिंग में हमको ध्यान में रखना है. जैसे प्रोमोटिंग टेस्टिंग अवेयरनेस, हमें टेस्टिंग अवेयरनेस के बारे में इंडिविजुअल्स को, पेशेंट्स को जितना ज्यादा हम अवेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम बता सकते हैं. फोकस ऑन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेशली हमें उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे फोकस करना है जिनको इन नीड है कि हाँ वो हेपेटाइटिस के कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर्स में आ रहे हैं, या फिर वो लोग सफर कर रहे हैं जो कि आगे और ज्यादा चांसेस हो सकते हैं प्रॉब्लम कॉज करने के. क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना बेटर बना सकते हैं, उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम काम एनवायरनमेंट, कीप इन काम एनवायरनमेंट होगा, जिसकी वजह से हम उसको कितना और कंफर्ट करा सकते हैं, जिससे कि वो क्लियर हो जाए कि हाँ दिस इज द मेन इशू एंड वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम. रिड्यूसिंग द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा मतलब मेनली क्या है कि स्टिग्मा बहुत सारी चीजों का स्टिग्मा है लोगों को, ठीक है. इट्स अ निगेटिव सोशल एटीट्यूड. मतलब लोगों में क्या है, एक टुवर्ड्स किसी भी इंडिविजुअल के टुवर्ड्स एक निगेटिव सोशल इम्पैक्ट होता है, जो कि पहले जैसे बहुत सारी चीजों में रेस को लेकर के था, एज को लेकर के होता है, ठीक है, या फिर कोई जेंडर आइडेंटिटी को लेकर के है, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को लेकर के है. तो अभी क्या है कि यहाँ पे लोगों ने हेपेटाइटिस को लेकर के भी एक स्टिग्मा अपने मन में बना रखा है, जो कि बहुत जरूरी है कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन काउंसलिंग. हम काउंसिल कर सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं कैसे हम कम करेंगे. डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द इंडिविजुअल्स आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट शेयरिंग their thoughts, they are not sharing their ideas, even they are not sitting beside the person who is suffering from hepatitis, कि हमें भी कहीं ना हो जाए hepatitis. So it's very important to reduce the stigma as well as discrimination. So there are WHO's 5 C's for hepatitis testing. हमें 5 C हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देना है और ध्यान में रखना ही रखना है कि अगर हेपेटाइटिस टेस्टिंग हो रही है तो WHO के हिसाब से 5 C's हैं. फर्स्ट इज कंसेंट, मतलब मस्ट गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब बिना कंसेंट लिए या दिए हमें बिल्कुल भी हेपेटाइटिस टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें कंसेंट लेना ही लेना है. वर्बल कंसेंट इज सफिशिएंट. कभी कभी रिटन फॉर्म नहीं अवेलेबल होता है हमारे पास, तो हम वर्बल कंसेंट कर सकते हैं. राइट टू डिक्लाइन, इफ द पर्सन इज नॉट वांट, वो डिक्लाइन कर सकते हैं, देन इट्स ओके, हमें वो चीज भी एक्सेप्ट करनी है. ईच पर्सन हैज अ प्राइवेट अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर टेस्टिंग. मतलब हम कोई भी अगर प्राइवेट अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें वैसे ही करवाना है. विल गो फॉर प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज कि हम ऐसे टेस्टिंग करवा सकते हैं. सो फर्स्ट इज consent, second is confidentiality. We have to maintain confidentiality, means ensuring a confidential settings, मतलब preserving confidentiality. हम कैसे
कोई पर्सन है अगर, तो इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, तो हमको ध्यान में रखना है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, वो कहीं लीक ना हो, बिगड़े ना, बिकॉज नो वन वांट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई किसी के पास जा रही है या कोई भी उसको शेयर कर रहा है, तो उसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ऐसा होता है कि ध्यान में नहीं देते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, जो कि क्या करती है, प्रॉब्लम डिस्करेज करती है कि टेस्टिंग कैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से पीपल जो है डिस्करेज हो जाते हैं कि वो यूज नहीं करेंगे, टेस्टिंग सर्विसेज यूज नहीं करेंगे, या फिर और भी चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो ऑल पीपल शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पूछ सकता है, बात कर सकता है, किसी भी फॉर्म में बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज पोस्ट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री एंड पोस्ट दोनों काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी एंड सी शुड वॉलेंट्री या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके वो टेस्टिंग के बारे में, आइदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव, आइदर रिजल्ट इज नेगेटिव, वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। सो पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट काउंसलिंग के लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ करके रखते हैं, क्राइटेरिया चेकलिस्ट बना के रखते हैं कि दिस इज प्री टेस्टिंग, अगर हम ये करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। पोस्ट टेस्टिंग, उसके लिए भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ करके रखते हैं कि आइदर दिस इज गुड, वो मेंटरिंग के अंदर आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस हाई क्वालिटी काउंसलिंग के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। लाइक हम लोग पूछ सकते हैं, हैव इश्यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एंजाइटी बीन एड्रेस। मान लो किसी को कॉन्फिडेंशियलिटी हो रही है और एंजाइटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन उसको ऐसा लग रहा है कि अच्छे से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और वो होने नहीं देना है। तो हमें इस चीज की काउंसलिंग का बहुत ध्यान में रखना है कि हम उस चीज को कैसे काउंसिल करें पेशेंट को। सो हेपेटाइटिस टेस्टिंग के लिए मतलब हमें काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्री काउंसलिंग एज वेल एज पोस्ट काउंसलिंग। नेक्स्ट इज करेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई क्वालिटी टेस्टिंग सर्विसेज होनी चाहिए, तो वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है वो भी बहुत मायने रखता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। इसके लिए हमें अच्छी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी लैब यूज करनी है, जो कि हमें इज नॉट हेपेटाइटिस पॉजिटिव और उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला, तो बेकार का वो मेंटल ट्रिगर, मेंटल प्रेशर और बहुत सो मेनी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक इशू क्रिएट कर देते हैं कि कैसे हम उसको ऐसे कैसे हो गया, या फिर हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम उसको कैसे ठीक करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ मेन प्रॉब्लम एंड कॉज टू deal with it. So this is very important. Next is connection. So WHO's fifth point is connection. Connection means how can we connect with the prevention, treatment, care services. It may be very effective or it may be follow up if the person is having a good communication, like prevention अगर हम maintain कर रहे हैं, वो अच्छे से फॉलो हो पा रहा है, ट्रीटमेंट हम उसको कैसे दे रहे हैं, तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्रिवेंशन भी देना है एज वेल एज हमें ट्रीटमेंट और केयर सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना है, जो कि इफेक्टिव हो सकता है, या फिर अगर इफेक्टिव या लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन चल रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में हम ठीक कर सकते हैं। तो वो प्रिवेंशन कैसा हो सकता है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान रखना है। So these all are the 5 main WHO's C's for hepatitis testing. Next is pre-test information. Pre-test information, it may be a viral hepatitis, means viral hepatitis है तो उसके बहुत सारे hepatitis testing जब हम करते हैं तो BNC उसका either positive result और negative result निकलता है, उसका क्या impact पड़ता है mental health पे, especially the persons who are suffering from like अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, ऐसा कि डिप्रेशन वाली फीलिंग्स आती है। सो डिप्रेशन और हेपेटाइटिस का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट स्टिग्मा जो कि अटैच हो चुका है लोगों के साथ कि पीपल हु डजंट मतलब अंडरस्टैंड द कंडीशन, उनको तो ऐसा होगा ही होगा, या स्क्रीनिंग करवा लिया और हेपेटाइटिस पॉजिटिव निकल आया तो वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टिग्मा इज एसोसिएटेड विद लैक ऑफ नॉलेज सराउंडिंग बाय वायरल हेपेटाइटिस,
स्पेशली फियर ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन हो या ऐसा ना हो कि हम ठीक ना कर पाए या कैसे ठीक होगा. So that is also a big problem. So brief description of prevention is very important. Confidentiality of test हमको बहुत maintain करनी है, especially information shared by patient. ऐसा बारी होता है कि हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को या घर वाले पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. अगर उसको अचानक से पता चल रहा है या पता चल रहा है कि हम मतलब हेपेटाइटिस हो गया है, तो उसको भी हमको समझाना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है कि जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो पॉजिटिव है और किस वे में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या सही कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज पोस्ट टेस्टिंग काउंसलिंग एंड सर्विसेज हु टेस्ट पॉजिटिव. ये तो अभी जाहिर सी बात है कि वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर पिक्चर बननी चाहिए जो भी पर्सन है या पेशेंट है. ठीक है, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि द पिक्चर इज नॉट क्लियर, लाइक प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन फॉर द टेस्ट जो भी परफॉर्म होने हैं वो किस स्टेजेस पे होने हैं, वो सारी स्टेजेस भी क्लियर होनी चाहिए, डिजीजेस क्लियर होनी चाहिए. हम अगर किसी की हेल्प ले सकते हैं तो रेफर कर सकते हैं पेशेंट को कि हाँ यहाँ हम हेल्प ले सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं कि हम हेल्प नहीं ले सकते. जिससे मेनली यहाँ पे मेंटल हेल्थ इज क्रिटिकल. मतलब द पर्सन हु इज हैविंग लाइक पॉजिटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव उसको मिल रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी मेंटल हेल्थ चैलेंजिंग. एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि इतना चैलेंज है उसको कि हम कैसे हेल्प करें, हम कैसे सपोर्ट करेंगे उसको. सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए हम उसको बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं जो अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है या रह सकता है. ठीक है, कैसे हम इंफॉर्मेशन और प्रिवेंशन को हम कैसे डील कर सकते को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फैमिली स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं. फैमिली स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वैक्सीनेशन. फैमिली स्क्रीनिंग मतलब क्या है कि हम उसको ऐसा तो और भी घर में लोगों को हो रखा हो या हो रहा हो और हम वैक्सीनेशन इज वेरी वैक्सीनेशन is very important. Vaccination because सबको होना चाहिए. तो फैमिलीज वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वैक्सीनेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये चीज हमें प्री काउंसलिंग और में ही बतानी चाहिए कि वैक्सीनेशन आपको करवाना है. ठीक है, और करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं. साथ ही साथ हम फैमिली स्क्रीनिंग करेंगे. फैमिली स्क्रीनिंग में हम ये देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं तो हम उसको भी पहले से कर सकते हैं. पोस्ट टेस्टिंग के साथ साथ हम लोग निगेटिव रिजल्ट अगर आता है तो उसको भी एक्सप्लेन करना है. एचबीवी के वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसीजर बताना है कि वो हम कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे ऑफर करेंगे. ठीक है, रिपीट टेस्टिंग कैसे होगी फॉर एचसीवी इफ द पेशेंट इज एट हाई रिस्क. तो वन टाइम में अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको सेकेंड टाइम करते हैं, सेकेंड टाइम में नहीं हो रहा है तो हम उसे थर्ड टाइम करते हैं. फिर अगर वन टाइम अगर डोज दिया हमने, वो डोज से अगर इफेक्टिवनेस नहीं निकला तो फिर हम लोग एक दोबारा से रिपीट करवाते हैं. अगर दोबारा से भी हमारा रिजल्ट नहीं आया या वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं हुआ या फिर पेशेंट में वो इफेक्टिव नहीं रहा तो हम उसको दोबारा से फिर से रिपीट करवाते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट वैक्सीनेशन की किस किस वे में करवाना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल प्रोवाइडर्स के लिए काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें से सबसे पहला है मेडिकल प्रोवाइडर्स मींस काउंसिल पेशेंट करना है. तो हाउ समवन गेट हेपेटाइटिस बी, तो उसके लिए कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना है. मतलब रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क है हमें डिजीज ट्रांसमिशन का फैमिली मेंबर्स का, बिकॉज फैमिली मेंबर्स क्या है, हमारे साथ में रह रहे हैं या वो हमारे साथ हैं या हम हमारे आसपास हैं. तो ज्यादा चांसेस है आइदर वो ब्लड के थ्रू हो सकता है या फिर जो है डायरेक्ट कंटेमिनेशन या डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई सेक्सुअल पार्टनर आता है या आपका सेक्सुअल फ्लूइड से ट्रांसमिशन हो सकता है. तो ब्लड के थ्रू अगर हम बात करें तो मदर टू चाइल्ड बर्थ के समय हो सकता है, या आपने घर में कोई शार्प रेजर्स यूज किया है, टूथब्रश सेम यूज कर लिया है आपने, या कोई ऐसा इक्विपमेंट, ठीक है, इयररिंग्स वगैरह जिसमें डायरेक्ट कंटेमिनेशन हो सकता है या ब्लड आ सकता है.
या फिर टैटूइंग, आजकल बहुत सारे लोग टैटूइंग कर रहे हैं, पियर्सिंग ऑप्ट कर रहे हैं, वो चेक नहीं करते हैं कि वो निडल कैसी है, वो इंच कैसी है, ऐसी तो नहीं शेयरिंग निडल है। या ड्रग अब्यूजर्स की अगर हम बात करें तो इट मे कॉज अ हाई रिस्क ऑफ चांसेस कि आपको हेपेटाइटिस बी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन मिल सकता है। तो ये सब चीजें हमें पहले से बता करके देनी है कि इन केस अगर कोई पार्टनर है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन मेथड्स यूज करने हैं, या घर पे कैसे, घर पे कोई है तो उसको कैसे इक्विपमेंट यूज करने हैं जो कि शेयरिंग यूटेंसिल्स वगैरह ना हो, या शेयरिंग नीडल्स वगैरह ना हो, या कोई ऐसी चीज ना हो जो कि डायरेक्ट कंटेमिनेट आपको कर सके। ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो ब्लड के थ्रू कंटेमिनेशन में आती है, दैट इज अनस्टाइल हेल्थ केयर प्रैक्टिस, जो कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी हो सकती है, या फिर कोई कम्युनिटी एरिया में कहीं कहीं पे जहाँ पे इन नीड हो और वहां पे हो सकती है। So it is very important to counsel the family as well as the couple for providing a safe and create a good environment और healthy environment। और हम कैसे इससे बच सकते हैं वो भी हमें बताना है, because it directly impact the mental health। मतलब जो भी इंडिविजुअल है या फैमिली है उसके डायरेक्टली उसके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, जो कि एक प्रॉब्लम कॉज करती है, इन फ्यूचर जाकर के दिक्कत हो सकती है। So there is one diagram, there is a sharing of food, है ना, फैमिली काउंसलिंग इज देयर, वायरस इज देयर, ठीक है, ट्रीटमेंट इज देयर, utensils are there, intimacy is there, so we all need to cope up with the sign and symptoms। so वो बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं। जैसे सब्सटेंस अब्यूज की बात करें तो ड्रग अब्यूजर्स मेनली शेयरिंग ऑफ नीडल्स करते हैं, या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जो कि मेजर कॉज है हेपेटाइटिस बी एंड सी का। मतलब बहुत सारे आपको पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि सब्सटेंस अब्यूजर्स है और उनको हेपेटाइटिस हो रखा है। सो इट मे लीड टू इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ इश्यूज। वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को बहुत ज्यादा वो करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन इंक्रीज द सब्सटेंस अब्यूज। मतलब अगर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ड्रग अब्यूजर्स, वो क्या करेगा, वो ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगी उसकी हेपेटाइटिस होने की। तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लाइक जैसे उनको थॉट्स आ रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या सुसाइड के थॉट्स हैं, फटीग फील हो रहा है, वेट लॉस नजर आएगा। ऐसा नहीं है, स्लीपिंग ट्रबल्स होंगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होंगी। स्लीपिंग प्रॉब्लम इज ऑल्सो शुड कि अगर पर्सन को हेपेटाइटिस के साथ में और भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो रही है, उसको नींद आनी बंद हो गई है, तो इट मे लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी। वो डिस्टर्बेंस आपके एक साइड इफेक्ट की तरह काम करेगा। स्लीप डिस्टर्बेंस है तो वो एक वायरल हेपेटाइटिस का साइड इफेक्ट हो सकता है कि उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बिहेवियरल हेल्थ काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम इसकी बात करें तो नेचुरल हिस्ट्री की हम बात करते हैं जिसमें हम स्क्रीनिंग करवाते हैं। सो देयर आर सो मेनी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं जो कि वायरल हेपेटाइटिस की टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन है। नेचुरल हिस्ट्री हमें पूरी पता करनी है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजीज जो स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस रैपिड स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट आ रही हैं, ठीक है, या क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए, क्लिनिकल असेसमेंट के लिए उनको हम क्या असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें चीजें हो सकती हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड टेस्ट हम करवा सकते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करवा सकते हैं, फास्टिंग टेस्टिंग करवा सकते हैं, कोर एंटीजन वगैरह करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उनको हम कैसे डील करेंगे, स्पेशली वो कैसे हम उनको ये समझाएंगे कि ये इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उन एडवर्स इफेक्ट्स को हम कैसे मतलब बैलेंस कर सकते हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। स्पेशली हाई रिस्क पॉपुलेशन हमारी वही है जिसको हमें बोलना है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा वरी नहीं होना है। ठीक है, पेशेंट अगर हेपेटाइटिस और बी और सी से डील कर रहा है तो उसके बहुत सारे मूड एंड कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हम कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो फिर कोई पर्सन अल्कोहल अब्यूज कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनको भी वो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो उनको हमें पहले से कैसे डील करना है। ड्रग अब्यूजर है अगर ड्रग्स अब्यूज कर रहे हैं, या फिर आजकल एडोलसेंस एज की अगर हम बात करें और एडल्टहुड की बात करें तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है, वो धीरे धीरे
रिस्क में आने लगते हैं, इन्फेक्शन होने लगता है फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, तो हाउ कैन डील विद इट? तो हमें वो चीज पहले से बता के देना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते, हमें बात करनी है कि क्या है हेपेटाइटिस, हम खुल के बात कर सकते हैं। वो ज्यादा हेल्पफुल है और ज्यादा डील कर सकता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो देयर इज अ इफेक्टिव काउंसलिंग स्ट्रैटेजी, बहुत सारी इफेक्टिव काउंसलिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं। मोटिवेशनल अप्रोचेस यूज करते हैं। मोटिवेशनल अप्रोचेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको कैसे मोटिवेट करके, अगर क्योंकि बिकॉज पूरा बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन हो रखा है जिसकी वजह से वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस डिप्रेशन से निकाल करके लेकर के आने ही आना है, हमें उनको मोटिवेट करना है, किसी भी तरीके से हमें उन्हें अप्रोच करना है कि वो ट्रीटमेंट को समझें, उसको एक्सेप्ट करें और उसको लें। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकता, इट मे टेक टाइम बट इट इज क्योरेबल, इट इज प्रिवेंटेबल। सो इफेक्टिव काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करना है हमें, जिसमें से सबसे पहला है कि सेफ्टी इंश्योर करानी है, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द काउंसलर्स एज वेल एज हम एक थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, थेराप्यूटिक बात हम करते हैं कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करा सकते हैं, हेल्पिंग क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस की कैसे वो खुद समझे कि कैसे वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज कम्युनिकेशन विद द पर्सन, कम्युनिकेशन विद द हेल्थ केयर वर्कर, प्रोफेशनल अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें देनी भी है, वो हमें प्रोवाइड भी करानी है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ ग्रुप थेरेपी, इन फॉर्म ऑफ सोशल सपोर्ट, इन फॉर्म ऑफ कंबाइन हो सकती है ग्रुप थेरेपी एंड सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो स्पेशली हम पेशेंट के ऊपर ये बात करेंगे कि उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बैलेंस हो, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि एक्सरसाइजिंग उसको करनी है रेगुलरली, ट्रीट अगर डिप्रेशन तो डिस्टर्ब हुआ है उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उसको हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मूड इज लाइक फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी भी कभी ठीक है, कभी डिप्रेस हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, तो उसका हमें बहुत ध्यान में रखना है। मेडिकेशंस का भी हमें बहुत ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि इसके साथ मतलब मेडिकेशंस भी छोड़ दिए या फिर हम ठीक नहीं हो सकते करके पर्सन बैठ गया, तो हम उसको क्या समझाएंगे। हमारा मेन काम है कि उसको टॉक या फिर उसको थेरेपी के जरिए या फिर उसको हम किसी भी अप्रोच से, मोटिवेशनल अप्रोच से हम उसको समझा सकें कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेनली जो सब्सटेंस अब्यूजर्स हैं उनका ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूजिंग सब्सटेंसेस, तो हमें वो इनकॉर्पोरेट करना है, उनकी नीड को हमको ट्रीटमेंट प्लानिंग के थ्रू लेकर के आना है कि नहीं, हम उनको प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, रिस्क फैक्टर जो ज्यादा एसोसिएटेड हो रहे हैं, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। So next is developing a plan to prevent, हमने पहले से strategies plan करनी है कि if the patient is suffering from anxiety, mood disorder या फिर डिप्रेशन हो रखा है, उसमें क्या हो रखा है, एसोसिएटेड किससे कर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज भी है तो कौन सा है, स्टिमुलेंट है या डिप्रेसिव या फिर डिप्रेसेंट है, उसके अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं। मोटिवेशनल अप्रोचेस यूज कर सकते हैं आइदर इन अ डिफरेंट फॉर्म, मोटिवेशनल टॉक हो सकती है या ग्रुप सेशन हो सकता है जिसमें मोटिवेशनल टॉक हो, या पर्सनल शेयरिंग हो सकती है जो किसी को बहुत मोटिवेट कर दे। इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन। नेक्स्ट इज अगर हम सोशल स्टेटस की बात करें तो कन्फ्रंटिंग द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्पोजिंग हेपेटाइटिस स्टेटस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। रिलैप्स को भी हमें एड्रेस करना है, पेशेंट के मन में पहले से ये चीज हमें समझा के देनी है कि ऐसा हो सकता है, समटाइम ऐसा होता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहता है तो वो दोबारा से आ जाता है बिकॉज डिजीज जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ इश्यूज आ सकते हैं। वो इश्यूज को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको हम दोबारा से अगर हो रहा है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज आपके आसपास आप जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ रह रहे हो, उनका सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे
आज क्या है, नो वन इज कैपेबल या नो वन इज हैविंग टाइम टू टॉक टू अदर पर्सन, तो वो सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक सोशल सपोर्ट मिले, आप एक उस सपोर्ट को बिल्ड कर सको जिसकी वजह से हाँ आपकी जो बात है आप किसी से कहना चाहते हो, हाँ तो समवन इज रेडी टू लिसन. सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप सपोर्ट सिस्टम, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इफेक्टिव केस मैनेजमेंट. केस मैनेजमेंट वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो कैसे उस केस को हम मैनेज करेंगे जो कि इफेक्टिव वे में हो सकता है, प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटीज, है ना. वो सारी फैसिलिटीज किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, आइदर इन मैनेजिंग वरीज, आइदर इन मैनेजिंग टू डेवलप पेशेंट लेवल, आइदर टू डेवलपिंग और टू टॉक अबाउट हेपेटाइटिस. Hepatitis is like a disease in which we are using many strategies as well as there are so many social stigmas जिसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है. स्पेशली इनकरेज करना है पेशेंट को जो कि डिस्क्लोज करें कि उनकी इलनेस है, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, या उनके साथ डिस्कस करें जो उनको एक पॉजिटिव हेल्थ दे, पॉजिटिव सपोर्ट दे. तो अब मेन काम ये है कि द पर्सन हु इज लिविंग विद हेपेटाइटिस नीड टू सपोर्ट, मतलब हमें उसको सपोर्ट करना है, उस फैमिली को सपोर्ट करना है. वी आर प्रोवाइडिंग पॉसिबल कोपिंग मैकेनिज्म हमें उनको देनी है कि स्ट्रेस कम से कम हो, और हम कितनी कोपिंग मैकेनिज्म हम उनको दे सकते हैं या बता सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसकी वजह से वो और ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें, मोटिवेशनल अप्रोचेस को फॉलो करें और ट्रीटमेंट को फॉलो करें, और जिससे वो ज्यादा बेटर लाइफ जी सकते हैं. Next, the most important thing is the stigma. As I already discussed about stigma is very important. कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज नाउ अ डे स्टिग्मा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट जो कि इंडिविजुअल हेपेटाइटिस को लेकर के बना दिया है, या फिर एचआईवी को लेकर के बना दिया है, या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर को लेके बना दिया है कि हाँ ये ठीक ही नहीं हो सकता है, और अभी तो डिप्रेशन हो गया है पेशेंट को, ठीक नहीं हो सकता, ये अभी तो जिंदगी भर ये ऐसे ही रहने वाला. सो जो ये डिस्ग्रेस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस जो पर्सन सफर करता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, तो वो कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं. Fear of infection and lack of information is one of the most important thing in intimate relationship. The people are not capable to make a good relationship because they are in trouble, they are in suffering, always in suffering की मतलब ऐसा ना हो हम तुमसे बात करेंगे और तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाए. So they are not talking to each other, they are sitting in a same house in a different rooms, they are not talking to each other. This is the main impact of psychological stress the person who is suffering from hepatitis. They are not going outside कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो ऐसा. The lack of knowledge, the person is also having a lack of knowledge as well as their family members and their society is also having a lack of knowledge, जिसकी वजह से बहुत सारे sufferings हो रहे हैं, बहुत सारे sufferings को उसको पर्सन को सफर करना पड़ता है. सो इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग अ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, बाय इम्प्लीमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाने हैं, उसकी कंप्लीट वैक्सीन की डोजेस देनी है, उनको बताना है, समझाना है, वैक्सीनेशन का प्रॉपर क्राइटेरिया सेट करना है और करके उसको इम्प्लीमेंट करना है. अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, रेजिंग अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस वायरस बाय डिस्क्रिमिनेटिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं. अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम उसे बहुत सारे फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ खाली हम जो है सिर्फ एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं, उसको बहुत सारे डिफरेंट मेथड से हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, सोशल स्टिग्मा कम कर सकते हैं. पहले तो खुद को समझना है हमें, हम क्या समझ पा रहे हैं, हम सही समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं. Then we deal with our family members, our loved ones, our relatives as well as जो भी लोग हैं जो हमारे दायरे में आ रहे हैं, हम उनको कैसे समझा सकते हैं या बता सकते हैं. Are we now using online social support? हर चीज में हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं. सो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके थ्रू हम स्टिग्मा को रिड्यूस कर सकते हैं, हम पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं, हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फैला सकते हैं. ठीक है, जो इश्यूज हो रखे हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं. So using social media as a support is very important to reduce the stigma towards the
hepatitis by doing vaccination, by doing health education, by doing health awareness program, by doing talk. Only talk is one of the most important thing जिसके थ्रू बहुत सारी चीजों को हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपिंग अ प्लान. मतलब वी हैव टू डेवलप अ प्लान. ऐसा नहीं है कि बिना प्लान किए हम सारी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज थिंग कि आइडेंटिफाई स्पेसिफिक हाई रिस्क इंसिडेंसेस. हमें उनको ध्यान में रखना है कि जो हाई रिस्क केसेस हैं या इंसिडेंसेस हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको हम कैसे क्योर करें या प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड है फोकसिंग ऑन पास्ट बिहेवियर. पास्ट बिहेवियर को भी बहुत ख्याल रखना है. दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर अ क्लाइंट हु फील शेम और रिग्रेट. अक्सर क्या होता है कि मन में इतना फील शेम रख लिया है मन में इतना कि अब वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं या किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं. सो सम इंसिडेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें इंसान किसी से बात ही नहीं चाहता है. इट मे कॉज हार्म, इट मे डैमेज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आल्सो बिकॉज स्ट्रेस इज लाइक कि अगर हम ऐसी बात करेंगे या हम कहीं किसी से ये बात बोलेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे या लोग हमें समझेंगे नहीं. इस चीज का शेम भी रह जाता है और कभी कभी रिग्रेट भी रह जाता है बिकॉज दे आर नॉट coordinate with the person. Ask the client to describe what, who, what, where, when, how. These all are the risky experiences where the client need to discover कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ना क्यों हो रहा है. तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है कि अगर हो भी रही है तो पॉजिटिव लेनी है हमें. ऐसा नहीं कि निगेटिव लेनी है हमें. उसको रिड्यूस कैसे करना है, उस स्टिग्मा को रिड्यूस हम कर सकते हैं बाय टॉक. हम बात करके रिड्यूस कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. As well as keeping in mind that some patients will not know that they become infected. बहुत बारी ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्फेक्शन है या हो गया है. तो उसका भी ध्यान रखना है हमें. उसके लिए भी स्क्रीनिंग करवानी है. स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं तो बहुत बारी चांसेस ऐसा होता है कि रिस्क और बढ़ने के चांसेस है. तो हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं बाय डूइंग स्क्रीनिंग. Developing a risk reduction plan for this type of patient requires a gradual and supportive approaches, especially वो वाले risk factors जो कि ज्यादा identify हमने करे हैं कि इनको होने के chances ज्यादा हो रखे हैं. तो हम उनको कैसे करेंगे? हम उनको करेंगे कि risk factor reduction policies को लगाएंगे कि हम उसको कैसे reduce कर सकते हैं. It may reduces by supportive treatments. हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सपोर्टिव फैसिलिटीज दे सकते हैं, सपोर्टिव अप्रोचेस दे सकते हैं जो कि एक रिस्क रिडक्शन प्लान की तरह काम करेगा. रिस्क रिडक्शन प्लान तरह काम करेगा तो हम बहुत सारे लोगों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं एज वेल एज मेंटल हेल्थ को भी हम इन्फ्लुएंस करके रख सकते हैं. नेक्स्ट आइडेंटिफाई अ सिचुएशन व्हेन द पेशेंट मिनिमाइजेस हिज और हर रिस्क. हम अपनी खुद की रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम आइडेंटिफाई कर लें सिचुएशन. If we are living with the person who is suffering from hepatitis, we have to be in a mind that the person is infected, but don't discriminate it, don't stigmatize it. कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे. हमें बस चीजों का ध्यान में रखना है कि शेयरिंग जो चीजें हो रही हैं, पर्सनल चीजें जो शेयर हो उन कैसे रख सकते हैं या उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं. शेयरिंग यूटेंसिल्स से कैसे बच सकते हैं या जो चीजें ज्यादा शेयरिंग से इन्फेक्शन हो सकता है उनसे कैसे बच सकते हैं. आसपास के लोगों के साथ कैसे रहेंगे, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को. उस पर हमें ध्यान रखना है. Next is emphasizing pattern of behavior. The pattern of behavior actually change because of stress, because of worry, because of constant negative thought pattern. It is very important कि person का जो pattern of behavior है उसको हम समझें, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है रीविजिट के लिए उसको हमें बार बार बोलना है कि आप अपनी प्रोग्रेस को नोट करिए. यू आर हेल्दी और नॉट. इफ यू आर नॉट हेल्दी देन यू हैव टू बी काम एंड टेक अ प्रॉपर चेकअप. बार बार चेकअप्स आपको लेने हैं, रीविजिट करना है. रीविजिट करने से आपको बेटर फैसिलिटीज मिल सकती हैं. जो इन्फेक्शन या डाउट्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं. वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैक्सीनेशन हमें कराना है. हेपेटाइटिस ए बी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज क्या हैं वो सब समझानी है, जिसमें इज वन ऑफ द मेन अदर इन्फेक्शन जो कि वो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को, एक तो कोमॉर्बिडिटी भी बहुत ज्यादा है हेपेटाइटिस के साथ एज वेल एज इन्फेक्शन की वजह से मेंटल हेल्थ डैमेज होने की या खराब होने की, डिस्ट्रक्ट होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा है.
So that has spread in a same way as different types of hepatitis. So different way of hepatitis के तरीके से हो सकता है, या तो वो स्प्रेड हो सकता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनसे कैसे डील कर सकते हैं. बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक तरीके का हेपेटाइटिस एक ही तरीके का हमें पेशेंट मिले. इट मे चेंजेस, इट मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सन इज चेंजिंग देयर पैटर्न ऑफ थिंकिंग, स्प्रेडिंग, है ना. तो वो सारी चीजों को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज को कैसे फॉलो करके हम उससे डील कर सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है एड्रेसिंग रिलैप्स की. अगर हम बात करें तो our diagnosis of viral hepatitis might may increases the client's potential for relapse, जो कि स्पेशली मैंने पहले भी बोला कि ड्रग अब्यूजर्स हो सकते हैं, अल्कोहल इनटेक वाले लोग हो सकते हैं, बिकॉज अल्कोहल, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस एज वेल एज सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, तो उस ऑलरेडी उसकी रिलैप्स में होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो फिर से वही सारी चीजें करेगा, वो बार बार अल्कोहल इनटेक कर लेगा. अल्कोहल इनटेक करने से क्या, ऑलरेडी इम्यूनिटी तो वैसे भी खराब हो रखी है, और वो सीएनएस डिप्रेसेंट है, ऑलरेडी वो ट्रिगर करेगा. तो ये ध्यान में रखना है. साथ ही साथ क्या होता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी उनको और ट्रिगर करते हैं, तो पेशेंट फिर से वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में रिलैप्स में जा सकता है, वो फिर से दोबारा से वो चीजें यूज कर सकता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रखा है और भी डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस है. So the professionals can start conversation about relapse by asking the client follow questions. हम लोग उनसे बार बार पूछ सकते हैं, what kind of things make you think about using this again. हम उन पेशेंट से ये चीज पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बार बार उस चीज को सोचने पे मजबूर करती है, या लेने पे मजबूर करती है, या उससे क्या आपको इफेक्ट मिलता है. आइदर हेल्दी वे में भी मिल सकता है और अनहेल्दी वे में भी मिल सकता है. तो हेल्दी वे में तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, तो वो तो हेल्दी हो ही नहीं सकता है. तो इट मे लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी. पर्सन ऑलरेडी डिप्रेसिव फेज में चलेगा या फिर एंजाइटी फेज में चलेगा. तो हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं उनसे, या फिर हम पूछ सकते हैं, डू यू कंसीडर गेटिंग इंजेक्शंस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अ पॉसिबल ट्रिगर टू ड्रग यूज हो सकता है, या व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कुड यू हेल्प यू टू अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करने में हेल्प कर रही है, सब्सटेंस अब्यूज से अवॉइड करने में हेल्प कर रही है, वो चीजें आप बता सकते हो. उनको भी पॉजिटिव वे में लेकर के उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं, who could support you in these efforts. It's very important हम उनसे ये चीज पूछें कि सपोर्ट कौन कर रहा है आपको, ये एफर्ट्स जो आप लगा रहे हो वो who could support you, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वरीड आर यू अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलैप्स. ये भी पेशेंट से हम ये पूछेंगे कि आप वरी कितना हो, या पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब रिलैप्स में आने की, तो आप उसके लिए कितना वरी हो अगर आप दोबारा रिलैप्स में आ जाते हो. तो ऐसा करना ही क्यों है कि आप रिलैप्स में आ जाओ. सब्सटेंस अब्यूज को बिल्कुल अलग करना है, एक हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है. एज वेल आपको सोशल सपोर्ट ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम ग्रुप थेरेपीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको एक सपोर्ट देके रखेंगे, और आपको बहुत सारी जो वरीज हो रही है उनको हम जो ट्रिगर कर रही है मन में, जो प्रॉब्लम कॉज कर रही है, उनसे हम बच सकते हैं, या फिर हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट देनी है, पानी है, और क्रिएट करनी है कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को. बिकॉज मेंटल हेल्थ इज अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट फॉर अ पर्सन रिकवरिंग टू अचीव ओवरऑल वेलनेस. हमें ओवरऑल वेलनेस को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, या पॉजिटिव रखना ही रखना है. अगर हम उसको पॉजिटिव नहीं रखते हैं तो वो ट्रिगर करेगा ही करेगा. So that is very important कि the person who is suffering from viral hepatitis may having a more and more or double chances of having a mental health issues. उनको हम कैसे resolve कर सकते हैं, by doing so many things, by getting a mental health support, especially mental health support from anyone, from family groups, from other groups, from self-help groups, from hospital, from any health care personnel, any mental health care personnel, हम कहीं से भी ले सकते हैं. तो it may
एसोसिएटेड विद सर्टेन मेंटल इलनेसेस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि डिप्रेशन के साथ बहुत हेपेटाइटिस हो रहा है, एंजाइटी एंड मूड चेंजेस के साथ बहुत हेपेटाइटिस हो रहा है, स्लीप प्रॉब्लम्स के साथ हेपेटाइटिस हो रहा है, सब्सटेंस अब्यूज के साथ हेपेटाइटिस हो रहा है। तो हम इन सब के साथ कैसे डील कर सकते हैं, हम इन सब के साथ कैसे बच सकते हैं, और साथ में जो पर्सन है या पेशेंट है या जो पर्सन है या उसकी फैमिली मेंबर है, उसका क्या रोल है इन सारी चीजों में, या वो कितना सपोर्ट कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी सपोर्ट करे। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ इन वायरल हेपेटाइटिस। क्या हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, एंड स्पेशली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि टेक्निक्स क्या हमें यूज करनी है। सबसे पहले तो स्पेशली जो ड्रग अब्यूजर्स हैं या जो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं या कोई अदर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना है कि इस प्रैक्टिस को से नो, उनको नो कहना है किसी भी तरीके से, बिकॉज अगर वो नो नहीं कहते हैं तो इट मे वर्सन द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, वो बढ़ा देंगे, एज वेल एज लीवर तो डैमेज करेंगे क्योंकि इफ द पर्सन इज इन अल्कोहल अब्यूज ऑलरेडी लीवर डैमेज कर रहा है, साथ में हेपेटाइटिस है तो डबल डैमेज हो रहा है, तो फिर क्योरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेफ सेक्स के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग करें, हेपेटाइटिस की भी स्क्रीनिंग करें, एज वेल एज अगर HIV है उसकी भी स्क्रीनिंग करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल कंडीशन एज वेल एज इन द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज, या फिर इंटीमेसी की अगर हम बात करें तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। वरी के लिए हमें बताना ही है पेशेंट को कि मैनेज करे वो वरीज जो हो रखी हैं, हमें गाइड करना है कि पेशेंट प्रॉपर स्लीप ले, हेल्दी फूड खाए, एक्सरसाइज रेगुलरली करे, और लॉट ऑफ एनर्जी उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, जिससे कि जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। पेशेंस बना के रखना है, हम पेशेंस को लॉस नहीं कर सकते, बिकॉज हेपेटाइटिस इज अ डिजीज जो 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रही है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, या लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे पेशेंट चल रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो पीपल आर नॉट फ्री एट ऑल टू टॉक यू, सो यू कैन चूज कि कौन हमारी बात सुन सकता है, किससे बात कर सकते हैं। स्पेशली सोशल स्टिग्मा को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको तो हटाना ही हटाना है। तो पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी इलनेस को डिस्क्लोज करे इन हेल्दी वे। ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करेंगे किसी से, बताएंगे नहीं तो हम ठीक नहीं हो सकते। So telling others about having hepatitis isn't a good as in a bad, but in a healthy positive way कि हाँ ऐसा हो सकता है और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर बताओगे तो फिर हम और भी लोगों को ठीक कर सकते हैं। सो पर्सन लिविंग विद हेपेटाइटिस नीड सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली मेंबर एज वेल एज पॉसिबल क्लोज फ्रेंड्स। कितना भी इंसान जो क्लोज फ्रेंड है वो कितनी उनको हेल्प कर सकता है या दे सकता है, टू हेल्प देम बेटर कोप अप विद द इलनेस। और वो पर्सन उतना ही ज्यादा बेटर और कोप अप कर सकता है जितना ज्यादा सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट या फिर फ्रेंड्स का सपोर्ट, क्लोज सपोर्ट उसको मिलता है, वो उतनी जल्दी बाहर निकल के आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरल हेपेटाइटिस in especially in mental health issue, on the aspect of mental health. So thank you everyone.